हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर। सो एक एक पॉइंट समझने का एम है हमारा। ओके, सो लेट्स जस्ट डू दिस रीडिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen, and other essential substances. Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. Right, जो harmful substances है आपकी body में, that has to be eliminated. If it is going to stay in your body, then it's toxic, right? You can't keep that inside your body. It has to be eliminated. It is therefore essential to have efficient mechanisms for the movement of these substances to the cells and from the cells. Different groups of animals have evolved different methods for this transport. So transport of nutrients is not the same in all organisms. हर एक organism में different mechanism होगा for the transport of nutrients, hormones, etc. Simple organisms like sponges and coelentrates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. So, the simple organisms like the poriferans, sponges, Euspongilla, coelentrates, that is basically the Cnidarian, Hydra and all, they have a very simple circulatory system. Okay, so what kind of circulatory system they have, I'll show it to you over here. So for example, this is a porifera, okay, मतलब a sponge. So normally the water will come from one of the pores and will pass out from other pore. That's all. Okay. More complex organisms use special fluids within their bodies to transport such materials. Like we are complex organism, हम लोग सब complex organisms है. क्यों complex organisms है? क्योंकि हमारे पास proper level of organization high है हमारा, right? We have cells, बहुत सारे cells मिलकर टिश्यू बना रहे हैं. ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर मेकिंग ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली द होल ऑर्गेनिज्म. तो हमारे में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है. हर एक चीज़ के लिए हमारे पास हर एक ऑर्गन है. लाइक ईसोफेगस है, उसके बाद में स्टमक जहाँ पे पूरा जो फूड है वो पूरा चर्न हो रहा है, राइट? वो काइम बन जाता है. सबका एक अलग अलग है. इंटेस्टाइन्स है जो वाटर एब्जॉर्प्शन कर रही है. सो वी आर हैविंग अ वेरी प्रॉपर वेल एडवांस्ड सिस्टम्स, ओके, फॉर एवरीथिंग. इसके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इतना इजीली नहीं होगा. अगर आपको न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास फ्लूइड्स है जो हमें हेल्प करते हैं. ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर दिस पर्पस. तो वो फ्लूइड का नाम क्या है? ब्लड. ओके, सो दैट ब्लड इज़ द common one. Other is lymph and all. For this purpose, another body fluid is lymph, also helps in the transport of certain substances. Now in this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. So this was the intro para. इतना कुछ खास नहीं था, बट इसमें समझ में आ गया कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है. तो हम लोग इस चैप्टर में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लड. Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. तो blood किस किस चीज़ों से बना है? It is made up of what all things? Fluid matrix, plasma, चला गया, God, okay. So it is made up of what all things? It is made up of fluid matrix, plasma and formed elements. Plasma, तो ये है हमारा फ्लो चार्ट. यहाँ पे दिखा देती हूँ. ब्लड, प्लाज्मा, मैट्रिक्स तो है ये, तो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ भूलना मत. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज बेसिकली और सेल्यूलर एलिमेंट्स. यहाँ पे आएंगे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आपके आएंगे RBC, WBC और प्लेटलेट्स. क्लियर? दिस पार्ट इज क्लियर. प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स फर्दर है RBC, WBC और प्लेटलेट्स. अभी
प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं. सो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड. तो आपका जो ब्लड का 55% है ना वो प्लाज्मा से बन रहा है, और जो रिमेनिंग 45% है दैट इज योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. अभी ये जो 55% प्लाज्मा है उसमें भी 90 to 92% इज वाटर एंड प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 6 to 8%. ठीक है. तो अभी प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इस प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन क्या है, 90 to 92% इज प्योर वाटर एंड इसमें 6 to 8% इज योर प्रोटीन्स. अभी यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बोलते हैं कि ब्लड का ही जो 90 to 92% है वो वाटर है, और जो रिमेनिंग 6 to 8% ऑफ ब्लड इज दिस थिंग प्रोटीन. ये लोग ऐसे स्टेटमेंट डालते हैं, फिर ट्रू एंड फॉल्स में हम लोग फंस जाते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर कि प्लाज्मा खुद ब्लड में, देखो ब्लड में 55% प्लाज्मा है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. अभी उस 55% ऑफ प्लाज्मा में जो प्लाज्मा का पार्ट है, प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन, अकेले के कॉम्पोजिशन को देखें तो उसमें 90 से लेकर 92, 90 से 92 के बीच में वाटर प्रेजेंट होता है. रिमेनिंग 6 to 8% इज प्रोटीन्स. नाउ कौन से प्रोटीन्स प्लाज्मा में प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन, globulin and albumin. These are the three proteins present over here. Fibrinogen, globulin and albumin. Fibrinogen क्या काम करता है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ग्लोब्यूलिन किस में काम करता है, इम्यूनिटी में, एंटीबॉडीज़ वगैरह से रिलेटेड है. और एल्ब्यूमिन जो है ना वो है सॉल्ट और वाटर बैलेंस के लिए. ठीक है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया. अभी हम लोग रीड करते कि क्या यहाँ पे मैंशनड है. सो फाइब्रोजन्स आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, क्लॉटिंग या कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, सपोज आपको खून आया, ओके, आपको चोट लग गई है और अभी आपको खून आ रहा है, तो वो कुछ टाइम के बाद में खून आना बंद भी तो होता है ना, कि वो कंटिन्यूसली खून आता ही रहता है, आता ही रहता है. नहीं, कुछ टाइम के बाद में वो खून आना स्टॉप हो जाता है. तो वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस क्लॉटिंग. ओके, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होता तो फिर खून आते ही जाएगा एंड यू विल ब्लीड टू डेथ. ठीक है, सो दैट इज इट. Globulins primarily are involved in defense mechanism of the body, and the albumins help in osmotic balance. Defense mechanism of the body is basically all related to your immunity, okay, and albumin is for osmotic balance. Osmotic का मतलब है related to salt water regulation. Osmolarity is salt water regulation. तो वहाँ पे albumin रोल प्ले कर रहा है. ओके, सो ये तीनों प्रोटीन्स के फंक्शन समझ में आ गए. फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ग्लोब्यूलिन इज रिलेटेड टू योर डिफेंस मैकेनिज्म एंड एल्ब्यूमिन इज फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस. प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा. तो ये सारे स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट है. कौन कौन से, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड, ये सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट है. ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन द बॉडी. ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. ये हमेशा चाहिए ही रहते हैं. ये सब चीज़ें जो है बोलने की नहीं है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना वो ब्लड में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट ही होता है, बट जब भी आपको लग जाते हैं तभी ये इनएक्टिव फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, और अगर ये इनएक्टिव स्टेट में ही रह जाते हैं और एक्टिव नहीं होते हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास चेकअप कराना पड़ता है. बेसिकली देयर इज सम इशू विद इट. ओके, एंड प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. सो व्हाट इज बेसिकली सीरम? प्लाज्मा माइनस clotting factor. Plasma minus clotting factor is your serum. यानी कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इट्स वेरी अनटाइडी ना, वेट, प्लाज्मा माइनस clotting factor is your serum.
In other words, what can I write over here? Plasma minus fibrinogen. Plasma minus fibrinogen is also serum. Okay, because fibrinogen is a clotting factor only. It's helping in that. So that's all about your plasma part. क्या ये क्लियर है? ये पूरा मैं समरी बता दूँ. प्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा? तो हमने अभी तक पढ़ा कि जो ब्लड है उसमें 55% इज़ प्लाज्मा, और अभी हम लोग इंडिविजुअली प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन देखें तो 90 से 92% इज़ वाटर एंड रिमेनिंग 6 to 8% इज़ फ्लूइड, नहीं प्रोटीन्स. हाँ, 6 to 8% इज़ प्रोटीन्स. कौन कौन से प्रोटीन्स है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन. Fibrinogen is basically helping you in clotting of blood. Albumin is helping you in ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज सॉल्ट वाटर बैलेंस. कभी अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो फिर वाटर का कंटेंट ज़्यादा करना है, सॉल्ट का कम करना है. ADH वगैरह से आप पढ़ोगे एक्सप्लेनेटरी में, यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज़. ओके, तो मतलब बेसिकली दोनों को बैलेंस करके रखना है. दैट वो काम कौन कर रहा है? एल्ब्यूमिन कर रहा है. और ग्लोब्यूलिन इज रिलेटेड टू योर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, दैट इज रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी. इज़ दैट क्लियर? ये तीनों प्रोटीन्स पढ़े. फिर हमने पढ़ा कि कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट. ओके, एंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये लिपिड्स वगैरह भी प्रेजेंट ही होते हैं आपके ब्लड में, बिकॉज दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड. एंड व्हाट इज सीरम? प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर इज नथिंग बट सीरम. वो येलोइश कलर का होता है. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर प्लाज्मा पार्ट. हम लोग ने प्लाज्मा कंप्लीट कर दिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम लोग सेल्यूलर एलिमेंट्स भी बोलते हैं. अभी मैं ये वाला पार्ट हटा देती हूँ क्योंकि ये भी समझ में तो आ ही गया है क्या बात मैंने बताई थी. ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. Erythrocytes, leukocytes and platelets are collectively called as formed elements, and they constitute nearly 45% of the blood. Erythrocytes or red blood cells are the most abundant of all the cells. Okay, a healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 millions of RBCs per millimeter cube of blood. RBCs are formed in the red bone marrow in the adults. RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and name of these cells. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, which is called as the graveyard of red blood cells. Now, what is basically this paragraph trying to explain us? What is it? Okay, so let's understand this. What does it say? पूरा डिस्क्रिप्शन एरिथ्रोसाइट्स का बताया है. एरिथ्रोसाइट्स मीन्स रेड ब्लड सेल. सो एरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड एंड साइट्स मीन्स सेल. सो एरिथ्रोसाइट्स मीन्स रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, अभी एरिथ्रोसाइट्स जो है RBCs है वो सबसे ज़्यादा होती है. मतलब आउट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आपका कौन सा ऐसा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जो सबसे अबंडेंस में है? दैट इज एरिथ्रोसाइट्स. सबसे ज़्यादा एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट है. उसका अमाउंट क्या है? 5.5 मिलियन per millimeter cube of blood. 5.5 millions of RBCs are present per millimeter cube of blood. प्लेटलेट्स कुछ लैक्स में है और ल्यूकोसाइट्स थाउजेंड्स में है. प्लेटलेट्स इज 1.5 to 2.5 लाख. ओके, 1.5 to 3.5 लाख इसके बीच में होता है, अप्रॉक्स 2.5 लाख. एंड योर ल्यूकोसाइट्स इज तो वेरी मिनिमल, लाइक 6,000 से 8,000 कुछ अप्रॉक्स आप गिनोगे तो 5,000 होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट है? एरिथ्रोसाइट्स. ओके, नेक्स्ट ये बता रहा है कि इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है. वाई रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स हम लोग क्यों बोल रहे? बिकॉज उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है रेड कलर का, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. नाउ हीमोग्लोबिन में हेम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. ओके, सो आयरन एंड प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट, अमीनो एसिड वाला पार्ट. ओके, सो हीमोग्लोबिन. सो एरिथ्रोसाइट्स में ये हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो उसे रेड कलर दे रहा है. बट क्या उसको खाली कलर देने का काम है? जैसे हम लोग खाने में फूड कलर ऐड करते हैं बस उतना ही काम है? नहीं, ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं.
ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं, जहाँ पे टिश्यूज़ पे जैसे ही पहुँचते हैं वो लोग फिर डिसोसिएट होते हैं। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट्स इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जाता है टिश्यूज़ को एंड देन द ब्लड गोज बैक टू द हार्ट। तो बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बताया कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ ब्लड में, 12 to 16 grams। ओके, नाउ दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड। लाइफ स्पैन क्या है आरबीसीज का? 120 days। एवरी 120 days यू गेट योर न्यू आरबीसीज एंड वेर आर दीज ओल्ड आरबीसीज डिस्ट्रॉयड? दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और एम्ब्रियो में ये स्प्लीन ही रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और ये स्प्लीन एक्चुअली बहुत काम का है। जब भी आपकी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब भी आपके बॉडी को बहुत खून की ज़रूरत होती है एंड ऑलरेडी सब खून न्यूट्रलाइज हो जाता है, तभी पूरी बॉडी स्प्लीन से रिक्वेस्ट करती है कि भाई साहब प्लीज़ खून दे दो, आरबीसीज दे दो, तभी ये आरबीसीज को रिलीज़ करती हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्प्लीन। सो दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ रिगार्डिंग द फॉर्म्ड एलिमेंट्स का, दैट इज़ एरिथ्रोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। कुछ पॉइंट मिस नहीं हो रहा है? हाँ, न्यूक्लियस वगैरह, ये जो आरबीसीज होते हैं ना, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। मतलब जब भी ये फॉर्म हो रहे हैं ना, तभी तो वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट मच्योर्ड आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ई न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड और ई न्यूक्लिएटेड में फ़र्क समझो। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब पहले से ही न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होना। ई न्यूक्लिएटेड मतलब पहले न्यूक्लियस था, अभी न्यूक्लियस निकला है। ओके, अभी न्यूक्लियस निकला, मतलब मच्योर होके न्यूक्लियस नहीं होता है उनके पास। दैट इज़ व्हाट इट इज़, दैट मीन्स दे आर ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। गॉट इट? उसके बाद इन लोगों के पास यहाँ पे मेंशन तो नहीं है बट मैं बता देती हूँ कि इन लोगों के पास ना माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है और ना ही इन लोगों के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जो ओवरऑल इन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड सो दैट दे कैन इवन पास थ्रू द थिन कैपिलरीज ऑफ द बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल, वो एटीपीज यूज़ करके रेस्पिरेशन वगैरह में मदद करता है। तो ये खुद ही क्यों करेगा रेस्पायर एंड ऑल? उसको तो ऑक्सीजन उल्टा सबको पहुंचाना है, तो अगर उसके पास खुद के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वो खुद ही यूज़ कर देगा ऑक्सीजन को, राइट। तो जो उसको वो काम नहीं करना है, इसके लिए फिर वो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है मैच्योर वाले में। प्लस और क्या है, बाइकॉन्केव शेप है। बाइकॉन्केव मीन्स लाइक दिस, सी ऐसे चपटा टाइप्स ऑफ होता है, मतलब साइड से तो थोड़ा झाड़ा होता है बट बीच से थोड़ा सा फ्लैट होता है। साइड से इट इज प्रॉपर सर्क्यूलर बट सेंटर में इट इज पतला। सो इफ यू ऑल ईट दाल ढोकली ना, यूल अंडरस्टैंड कैसा शेप है। इट्स नॉट डोनट शेप, दाल ढोकली के जो बटिए होते हैं ना, इट्स दैट शेप। लेट्स सी आगे का पार्ट, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। अभी पूरा ल्यूकोसाइट्स पढ़ते हैं। सो leukocytes are also known as white blood cells as they are colorless due to the lack of hemoglobin। so अभी जो white blood cells है ना, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या इसका कलर रेड होगा? नहीं, इसके पास तो कोई कलर नाम की चीज़ है नहीं, इट्स बेसिकली कलरलेस। They are nucleated and are relatively lesser in number, which averages 6,000 to 8,000 per millimeter cube of blood. This is quite clear। आगे जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ओके, बहुत जल्दी बेचारे मर जाते हैं और दूसरे वाले पैदा हो जाते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। व्हाट आर द टू टाइप्स? Granulocytes and agranulocytes. Neutrophils, eosinophils and basophils are different types of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. Neutrophils are the most abundant cells, that is 60 to 65% of the total white blood cells, and basophils are the least, that is 0.5 to 1% among them. Neutrophils and monocytes, that is 6 to 8%, are phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body. Basophils secrete histamine, serotonin, heparin, etc. and are involved in inflammatory reactions. Eosinophil, which is 2 to 3%, resist infection and are also associated with allergic reactions. Lymphocytes, which is 20 to 25%, are of two major types, B and T forms. Both B and T lymphocytes are responsible for immune responses of the body. ये कुछ स्किप नहीं करना था। जब भी मैं रीड कर रही हूँ तभी प्लीज़ मेक श्योर दैट इवन यू ऑल आर रीडिंग द टेक्स्ट, तो तुम्हें डबल मेहनत नहीं लगेगी। अभी मैं इसका बताती हूँ कि व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से यॉल, ठीक है। तो ये बोल रहा है
कि ल्यूकोसाइट्स आर बेसिकली, ये फर्स्ट टू लाइन से तो उन्होंने बताया कि कितने अमाउंट है, क्या क्या प्रेजेंट है वगैरह वगैरह. देन इट इज सेइंग दैट WBCs इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स में ऐसे उनके प्लाज्मा, उनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. ओके. एंड ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब उनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उनका एग्जाम्पल क्या है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट. ठीक है. अभी सबका इंडिविजुअली बताया है कि कौन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और किसका क्या फंक्शन है. तो पहला हम लोग इनका ऑर्डर देख लेते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है, कौन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, कौन कम प्रेजेंट है, और फिर हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे. तो उसके लिए एक मैं ट्रिक दे देती हूँ, आपको ये याद रखना है ट्रिक, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड कि हु इज़ इन द अबंडेंस एंड हु इज़ इन द लेस अमाउंट. बिकॉज बेसिकली जब ये क्वेश्चन आएंगे ना, फिर आप ये ट्रिक यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो. बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट है और सबसे कम कौन सा प्रेजेंट है. सो रिमेंबर द ट्रिक, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना. आई राइट इट ओवर हियर. Never let monkeys eat banana. ठीक है. वेट, लिखा था ना मैंने, ये रहा. नेवर लेट मंकीज ईट बनाना. नाउ दिस N स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैं एक बार सेव कर लेती हूँ, तो फिर क्या होता है ना, वो चला जाता है. नेवर लेट मंकीज ईट बनाना में N स्टैंड्स फॉर व्हाट? न्यूट्रोफिल. L stands for lymphocyte. M stands for monocyte. E stands for eosinophil. And D stands for basophil. सो बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है, बट समझ में आ रहा है ना कि ये न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल. नेवर लेट मंकीज ईट बनाना. तो परसेंटेज वगैरह का थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता चल जाता है तो ठीक है, बाकी जब भी आपको मैथ्स का कॉलम या वगैरह कुछ आएगा, सो यू कैन फिगर इट आउट. ओके. बेसोफिल्स आर बेसिकली वेरी लेस, 0.5 to 1%, और न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, 60 to 65% वही प्रेजेंट होता है. अभी सबका काम क्या है? जो न्यूट्रोफिल है, व्हाट डज इट हेल्प इन? सो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस में मदद करते हैं. ठीक है. फैगोसाइटोसिस मीन्स ईटिंग अवे फॉरेन पार्टिकल्स, डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन पार्टिकल्स एंटरिंग द बॉडी. और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रोफिल्स का वो ऐसा दिखता है, सी प्रॉपर ऐसा एन जैसा, लाइक दिस. 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसके पास. somewhat like this ऐसा, like this nucleus is present. okay, and it is helping in phagocytosis. उसके बाद जो है न्यूट्रोफिल्स हो गया. उसके बाद क्या मेंशन है? बेसोफिल्स. बेसोफिल्स सिक्रीट्स 3 सब्सटेंसेस, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन. आफ्टर दैट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी वो मदद करेगा. इओसिनोफिल का जो अमाउंट होता है ना, वो एलर्जिक रिएक्शंस में बढ़ जाता है और वो आपको इन्फेक्शन से बचाता है, ड्रिसिस्ट्स, इन्फेक्शंस. देन लिम्फोसाइट्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट नाम कहाँ से पड़ा? बी लिम्फोसाइट इज बेसिकली बॉर्न एंड मच्योर्ड इन बोन मैरो, इसके लिए उसका नाम पड़ा है बी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट क्यों है? क्योंकि दे आर बॉर्न इन बोन मैरो बट दे आर मच्योर्ड इन थाइमस. गॉट इट? and B is responsible for humoral immunity and T lymphocyte is responsible for cell mediated immunity. This you'll understand in the immunity वाला chapter, human health and disease, but I'm just telling you over here. तो अगर आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मतलब एक बार आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है. नाउ प्लेटलेट्स, और अभी प्लेटलेट्स पे आते हैं हम लोग, अगर ल्यूकोसाइट्स का सब कुछ समझ में आ गया है तो. Okay, now let's understand platelets. Platelets are also called as thrombocytes and they are basically cell fragments produced from megakaryocytes, specialized cells in the bone marrow.
Blood normally contains 1.5 to 3.5 lakh platelets per millimeter cube. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. A reduction in their number can lead to clotting disorders, which will lead to excessive loss of blood from the body. Now, what does this mean? ये लोग बोल रहे हैं कि या थ्रोम्बोसाइट्स है, इसका अमाउंट भी प्रेजेंट कितना है, ये लोग ने ये मेंशन किया. उसके बाद उन्होंने बोला कि इन लोग के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. अगर ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो गए तो फिर क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे. क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे तो फिर अगर चोट लगेगी तो फिर ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो जाएगा. ओके, एंड एक एग्जांपल बताती हूँ मैं. हीमोफीलिया में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं. इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बट स्टिल उस डिजीज़ में क्या होता है, उस डिसऑर्डर में ये होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं. ठीक है, तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं तो वो बच्चे का इतना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि अगर उसको थोड़ी सी भी खरोश वगैरह आ जाती है तो फिर खून आता जाता है, वो स्टॉप करना. जो क्लॉट होता है नहीं ब्लड का, तो फिर वो खून बहता चाहता है एंड द चाइल्ड बिकम्स वेरी वीक. इसके लिए बहुत एक्सेसिव केयर करना पड़ता है उन बच्चों की. एंड ऐसे बच्चे ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहते नहीं. लाइक दे बहुत अच्छी केयर कर ली और उसकी बॉडी ने सपोर्ट कर लिया तो फिर वो लोग ज़िंदा रह लेते हैं, बट लाइक नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट कि दिल हैव टू. दैट्स ऑल अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स. इज़ दैट क्लियर? इतना पार्ट समझ में आ गया. So till now what we have done is we have understood the introduction part, then we have understood what is plasma, then formed elements, erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, and now let's understand blood groups. But before we start with blood groups, एक बार डायग्राम देख लो. RBCs ऐसा दिख रहा है, प्लेटलेट्स का ये डायग्राम है. इओसिनोफिल का हेडफोन शेप न्यूक्लियस है. बेसोफिल का स आता है, बेसोफिल में स साउंड आ रहा है, इसके लिए उनका न्यूक्लियस एस शेप्ड है. मतलब मैं ऐसे ही तुम्हें याद करने के लिए बता देती हूँ बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट देन अदरवाइज. न्यूट्रोफिल्स में आई हैव टोल्ड यू हाउ इट लुक्स, मैनी लोब्ड न्यूक्लियस. मोनोसाइट्स इज बेसिकली having like this bean shaped nucleus, and then we have lymphocytes ऐसा kidney shaped वाला. okay, now let's understand blood grouping. okay, ये रीड कर लेते हैं NCERT प्रॉपरली क्या मेंशन है. उसके बाद क्या है, उसके बाद है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, फिर लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवेज. ठीक है, करते हैं. चलो ब्लड ग्रुप्स के बारे में. सो एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपियर्स टू बी सिमिलर. वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन. Two such types of blood groupings are ABO and RH, and they are widely used all over the world. ABO blood grouping system and RH system है. ठीक है, दो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के सिस्टम्स हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या बताता है आपको, पहले मैं रीड करूँ कि समझा दूँ. ऑब्वियसली पहले तुम लोगों को लाइन बाय लाइन तुम लोग को मेरे साथ रीड करना है, और फिर बाद में मैं वंस द एंटायर थिंग इज़ कम्प्लीटेड आई मेक श्योर कि तुम लोग लर्न करो इसको. ठीक है, तो फिर सार तो मैं एंड में बताऊँगी कि इस पैराग्राफ में क्या क्या बोल रहे हैं. सो लेट्स डू द रीडिंग quickly. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, chemicals that can induce immune responses on the RBCs, namely A and B. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies, proteins produced in response to the antigens. The distribution of antigen and antibodies in the four groups of blood AB and O, that is A, B, AB and O are given in this table. You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, that is the destruction of RBCs. ये है compatibility table, इसको तो करना ही चाहिए, बहुत important है. उसके बाद में from the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to person with any other blood group, and hence O group individuals are called universal donors. Persons with AB group can accept blood from persons with AB as well as the other groups of blood. Therefore, such persons are called universal recipients. ठीक है, अभी क्या बता रहा है? So, ABO blood grouping system tells that there are two antigens, antigen A and antigen B.
present on the RBCs, on human RBCs there are two antigens, A and B. अभी कुछ इंडिविजुअल्स में एंटीजन ए प्रेजेंट हुआ, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा. सिंपल भाषा में ऐसे बोलो तो यही मैं बता देती हूँ, ठीक है. अगर आपके ब्लड ग्रुप की आरबीसी पर ए एंटीजन है तो आपका, ध्यान से सुनो, एंटीजन बोल रही हो, बीच में एंटीबॉडी की कहानी घुसाना ही नहीं है तुम्हें. एंटीजन बोल रही हो तो क्लियरली एंटीजन 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 ही डालो. अगर आपकी आरबीसी के ऊपर टेस्ट कराने पे ए एंटीजन मिलता है, ओके, ए एंटीजन इट्स बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन, ए एंटीजन मिलता है मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है. अगर बी एंटीजन मिलता है तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप बी है. अगर दोनों मिलते हैं, ए भी है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है. और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ही ए प्रेजेंट है ना ही बी प्रेजेंट है, तो आपका ब्लड ग्रुप ओ है. समझ में आया? ब्लड ग्रुप की कहानी, इतनी बात समझ में आई कि किसको कौन सा ब्लड ग्रुप होगा. हाँ, अभी ये बात याद रखना है कि जिसके पास जो एंटीजन होगा उसको अपोज करने के लिए उसके पास एक एंटीबॉडी होगा. अदर वाले को अपोज करने के लिए उसके पास एक एंटीबॉडी होगा, ठीक है. मतलब अगर उसके पास लेट्स से फॉर ब्लड ग्रुप ए है ना, मतलब उसके पास एंटीबॉडीज़ कौन से ब्लड ग्रुप के लिए प्रेजेंट होगी, बी ब्लड ग्रुप के लिए उसके पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी, ठीक है. और ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, ठीक है. अभी ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि उसके पास, हाँ, दोनों ब्लड ग्रुप है तो वो किसको वो करेगा. बट ओ के पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए बी और एंटीबॉडी बी के भी प्रेजेंट होगी, ठीक है. इतना बात समझ में आया? कूल. अभी ये टेबल देखो क्या हो रहा है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी कर रहे हो, मतलब व्हेन अ पर्सन इज अंडरगोइंग सर्जरी, एट दैट टाइम इट्स नॉट लाइक दैट कि अ पर्सन कैन बी गिवन एनी ब्लड एट एनी टाइम. यू कांट जस्ट गिव एनीबॉडीज ब्लड. Proper blood group you have to see and then accordingly you have to give that patient. For example, blood group A है तो एंटीजन्स कौन से प्रेजेंट होंगे, आरबीसी पे A प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगा, एंड डोनर्स ग्रुप कौन कौन इस ब्लड ग्रुप को दे सकता है ब्लड, उसको उसका खुद का A ब्लड ग्रुप भी दे सकता है और O भी दे सकता है, ठीक है. जिसके पास ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन तो बी है, एंटीबॉडी ए है, वो किसके पास से ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाला भी उसको दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ वाला भी दे सकता है, ठीक है. ब्लड ग्रुप बी तो ब्लड ग्रुप बी का ले ही सकता है और साथ ही साथ वो ब्लड ग्रुप ओ का भी ले सकता है. क्यों वो साथ ही साथ ब्लड ग्रुप ओ का भी ले सकता है? क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. उसके पास कोई भी एंटीबॉडी क्या है, उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. यू कैन जस्ट गिव इट फ्रीली. ए बी के पास एंटीजन ए बी है और बी भी है, बट उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, पर वो सबके पास से ले सकता है. ए बी के पास से भी ले सकता है, ए के पास से भी ले सकता है, बी के पास से भी ले सकता है, ओ के पास से भी ले सकता है. ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन, उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडी उसके पास दोनों की है, इसके लिए वो किसी का भी नहीं ले सकता. अभी ये टेबल तो मैं तुम लोग को बता दिया, बट ये किस बेसिस पर हो रहा है ये समझना भी ज़रूरी है. तुम्हें इतना समझ में आ गया कि किसी का एंटीजन जो होगा वो ब्लड ग्रुप उसके पास होगा और उसके अपोजिट वाली उसके पास एंटीबॉडी होगी. अभी किस किस का ले सकते हैं वो समझना ज़रूरी है, ऐसे ही खाली रीड करने से तो नहीं होगा, राइट. अभी सपोज लेट्स से एक बच्चा है जिसका नाम है श्याम, ठीक है. एक लड़का है जिसका नाम है श्याम और उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है. तो अभी ब्लड ग्रुप वो कौन किसका ब्लड ग्रुप ले सकता है? उसकी एक बहन है जिसका नाम है, बहन का नाम क्या लगे भाई, लेट्स से उसकी बहन का नाम है मीना, ठीक है. मीना का ब्लड ग्रुप है ए और उसके पास एक और भाई भी है जिसका नाम है राम. अभी श्याम का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसके पास तो वो किसका ब्लड ग्रुप ले सकता है? मीना का तो फॉर श्योर ले ही सकता है क्योंकि मीना का भी ब्लड ग्रुप ए ही है. बट क्या वो राम का ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप? नहीं, वो राम का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि अगर उसने राम का ब्लड ग्रुप लिया, दैट इज ब्लड ग्रुप बी है राम का, तो अगर उसने राम का ब्लड ग्रुप बी उसके अंदर ले लिया तो क्या होगा, उसके अंदर बी एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, राइट. तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर देगी उसको, ठीक है. एक अलग रिएक्शन होगा उसके आरबीसीज में, क्लम्पिंग नाम की चीज़ होगी,
दैट्स वाई नहीं ले सकते दूसरे का, या तो फिर वो ए ले सकती है, मतलब उसके पास जिसकी एंटीबॉडी है वो तो आना ही नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो वो इसलिए ओ का तो एंटीबॉडी नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है, तो ओ तो सबको दे सकता है, ओ का तो सब ले सकते हैं। इसके लिए वो अगर उसके कोई फ्रेंड या कोई और है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है तो भी वो ले सकता है। मीना उसकी खुद की बहन है, उसका ए ब्लड ग्रुप है, वो भी वो ले सकता है। बट वो राम का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता जिसका ब्लड ग्रुप बी है। क्यों है वो मैंने तुम लोग को पूरा रीज़न बता दिया, क्या सिनेरियो है। बी में भी कुछ ऐसे सिनेरियो है। अभी सपोज नेक्स्ट डे राम का ऑपरेशन हो गया और उसको ब्लड की कमी पड़ी है, तो अभी वो किसका ब्लड ग्रुप ले? क्या वो मीना का ब्लड ग्रुप ले सकता है? मीना का ब्लड ग्रुप क्या था? ए था। क्या राम मीना का ब्लड ग्रुप ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास उसके तरफ एंटीबॉडी है, तो इट कैन नॉट टेक। कैन इट टेक शाम्स? नो, वो भी ब्लड ग्रुप ए है, सो जाहिर सी बात है उसके पास भी ब्लड ग्रुप ए की तरफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अभी तो वो किसका ले सकता है? देखो भाई, कोई बी ब्लड ग्रुप होगा तो वो उस बी का ले सकता है प्लस ओ का ले सकता है। क्लियर दैट वे, क्योंकि ओ तो सबको ही ले सकता है ना, दैट्स वाई। वैसे ही याद रखना है। और ए बी सब, तो बेसिकली ये टेबल से हमको ये पता चलता है कि जिसके पास भी ए बी ब्लड ग्रुप है ना, वो सबके पास से ले सकते हैं। वो ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। इसलिए ऐसे ब्लड ग्रुप वाले लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे ब्लड ग्रुप वालों को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स, ओके, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स बोलते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उन्हें यूनिवर्सल डोनर्स बोलते हैं, मतलब वो सबको दे सकते हैं ब्लड। इज दिस क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग का क्या खेला है? सो गर्मी लग रही है, हाँ, आर एच ग्रुपिंग का क्या है सीन? Another antigen, the Rh antigen, similar to one present in rhesus monkeys, hence Rh, is also observed on the surface of RBCs of major, nearly 80% of humans. Such individuals are called as Rh positive. तो एक और एंटीजन है, एक Rh एंटीजन प्रेजेंट है जो फर्स्ट टाइम rhesus monkey में पाया गया, एंड it was observed that nearly 80% of the population has this Rh antigens in them. Okay, and those individuals which have Rh antigens in them, they are called as Rh positive individuals, and those who don't have this Rh antigens in their body, they are called as Rh negative individuals. Okay, so this is understood, this line. Okay, I'll just mark this that we are done with this paragraph, I mean this statement. Okay, an Rh negative person, if exposed to Rh positive blood, will form specific antibodies against the Rh antigens. Therefore, the Rh group should also be matched before transfusions. अगर you cannot mix Rh positive blood with Rh negative individuals, because the Rh positive blood will have specific antibodies towards the the Rh negative persons shouldn't be exposed to Rh positive individuals. Why? क्योंकि Rh नेगेटिव वालों के पास में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी RH पॉजिटिव इंडिविजुअल्स के ब्लड से, ओके, RH एंटीजन से उनके पास कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, इसके लिए यू कैन नॉट एक्सपोज द ब्लड। देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी ऑल्सो मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। देखना पड़ता है, खाली A B O देख कर काम नहीं चलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो A+B+ क्या है। अ स्पेशल केस ऑफ Rh incompatibility, that is mismatching, has been observed between the Rh negative blood of a pregnant mother with Rh positive blood of the fetus. Rh antigens of the fetus do not get exposed to the Rh negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of the Rh positive blood from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against Rh antigen in her blood. In case of a subsequent pregnancies, the Rh antibodies from the mother, that is Rh negative, can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBCs. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice of the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-Rh antibodies to the mother immediately after the delivery of the child. इस पैराग्राफ में क्या बताया है अभी?
आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव, रीसेस मंकी, दिस इज क्लियर. ओके, अगर आरबीसी के ऊपर एक आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो दैट इज आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स है. ठीक है, अभी एक स्पेशल केस है इस आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का. ओके, वो किसके बीच में है? तो सपोज अ प्रेग्नेंट मदर, ओके, इज देयर, जिसका जो आर एच नेगेटिव है, ठीक है, एंड शी कंसीव्स अ बेबी हु इज आर एच पॉजिटिव. तो खुद कौन है मम्मी? आर एच नेगेटिव है, बच्चा क्या है? आर एच पॉजिटिव है. अभी क्या होगा, जब भी फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तभी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी. फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होगा, बच्चा डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि प्लासेंटा नाम की चीज़ होती है ना, थोड़ी मम्मी और बच्चे का ब्लड मिक्स होता है, मिक्स नहीं होता वो, क्योंकि प्लासेंटा प्रेजेंट होता है. बट जब भी डिलीवरी हो रही होती है बच्चे की, तभी चांसेस है ना खून के मिलने की, ब्लड के मिलने की चांसेस है. तो अगर ब्लड मिक्स हो गया, थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स हो गया, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी द ब्लड गेट्स मिक्सड अप अ बिट ऑफ इट. सो व्हाट विल हैपन इज मदर इज एक्चुअली आर एच नेगेटिव, तो मम्मी के पास तो आर एच पॉजिटिव, आर एच एंटीजन, आर एच पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे में आर एच एंटीजन है. तो जो आर एच नेगेटिव होगा उनके पास एंटीबॉडी तो आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी तो प्रेजेंट होगी ना. तो अगर ब्लड मम्मी के अंदर चला गया, ओके, तो उसका जो ब्लड होगा उसके पास आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी होगी, राइट. इट विल क्रिएट एंटीबॉडी. अगर प्रेजेंट नहीं भी होगा तो इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग एंटीबॉडी, द बॉडी विल क्रिएट एंटीबॉडी फॉर इट. अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा. सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो एंटीबॉडी होगा वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है. सो दैट विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कंडीशन लाएगा बच्चे में. मतलब जो बच्चे की आरबीसीज होगी उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, ओके, पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा. प्लस या तो फिर उस बच्चे को सीवियर अनीमिया हो सकता है, दैट इज़ लैक ऑफ आरबीसीज, उनका आरबीसीज का अमाउंट कम हो सकता है, या तो फिर जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस हो सकता है एज सून एज द बेबी इज़ बॉर्न. ठीक है, तो ऐसे केसेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, जब भी वो लोग फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी कर रहे हैं उसके बाद तुरंत वो लोग एंटी आर एच एंटीबॉडी मम्मी में इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि ऐसे सीवियर चीज़ें आगे नहीं हो, ऐसी एंटीबॉडीज़ क्रिएट नहीं हो मम्मी के अंदर आर एच ब्लड ग्रुप के तरफ, एंड सेफ डिलीवरी हो सेकेंड वाले भी. गॉट इट? दिस वॉज अबाउट द आर एच कंपैटिबिलिटी. नेक्स्ट इज coagulation of blood. Coagulation basically means what? Clotting, blood clotting. Coagulation is nothing but clotting. So you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Do you know why? Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. Obviously कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर आपको लग गया, कट आ गया है, खून आ रहा है, तो एक टाइम पे उसको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत सारा खून बह जाएगा आपकी बॉडी में और आपको वीकनेस आएगी. गॉट इट? Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. आपको अगर लग जाती है उसके बाद में आपने थोड़े टाइम के बाद में नोटिस किया होगा, तो एक लाल या ब्राउन कलर की खोपड़ी बन जाती है, एंड मम्मी और ये लोग बोलते हैं अरे ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, इसके लिए ऐसा फॉर्म हुआ है. एंड बहुत मीठी मीठी वहाँ पे यू फील लाइक स्क्रैचिंग इट, बट देन आपको डॉक्टर्स और आपकी मम्मी लोग ना बोलते कि उसे स्क्रैच मत करो, वो और ख़राब हो जाएगा, फिर और पेन होगा. देन वो पूरा धीरे धीरे फॉर्म होके फाइनली फिर वो वाइट स्किन वापस आपकी प्रॉपर हो जाती है. इट्स बेसिकली हीलिंग. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrin in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. वो जो खोपड़ी है that is nothing but fibrin. Okay. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. Thrombin in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex thrombokinase required for the above reaction.
This complex is formed by a series of linked enzymic reaction cascade process involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activates the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ion plays a very important role in clotting. Okay, now let's understand the clotting का process पूरा. Imagine you have got hurt. Okay, so if you have injured yourself, then what will happen is some clotting factors will be released at that site by the blood platelets, and thromboplastin will be released. This thromboplastin converts prothrombin into this thromboplastin converts inactive prothrombin into thrombin, and then this thrombin converts inactive fibrinogen into fibrin, and then the blood clot is formed. So the entire mechanism is thromboplastin thromboplastin will convert it into thromboplastin will basically convert prothrombin into thrombin, and then this thrombin will convert fibrinogen into fibrin. So such a mechanism is basically nothing but cascade of reaction taking place. Okay, and what are the ions responsible for this reaction? Calcium ions. Calcium ions play a very important role in the blood clotting. If calcium is less in the blood, then clotting will be affected. Even one more vitamin is very important, vitamin K. Vitamin K is responsible for the clotting of blood. Okay, that's all about it. Next is lymph, that is tissue fluid. लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड बेसिकली थोड़े बहुत काफ़ी सेम ही होते हैं, बट इट्स जस्ट कि उनको उनके अलग अलग जगह पे वो लोग फ्लो हो रहे हैं, इसके लिए उनका नाम अलग अलग डाल दिया है. लिम्फ किसे किसे बोलते हैं? जो लिम्फ चैनल में फ्लो होता है, और जब भी यही फ्लूइड टिश्यू में बेध होता है तो उससे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे ये पैराग्राफ में क्या दिया है. ओके, so as the blood passes through the capillaries and tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. This fluid released out is called the interstitial fluid or the tissue fluid. Right now I just said the same thing. Okay, so blood, when it is passing through the capillaries, large proteins stay inside it and the small liquid part flows in the tissue, and that is called as the tissue fluid or the interstitial fluid. It has the same mineral distribution as that in plasma, except for that it is not having hemoglobin. Okay, it has the same components like which is present in the plasma. Exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and the cells always occur through this fluid. This fluid, that is lymph, will help in the exchange of nutrients, gases, just like blood, and but it is helping in the exchange of nutrients and gases between the blood and the tissue. Okay, an elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins. The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the interstitial villi. What are they trying to say is, suppose this is the blood. Imagine this is blood. Okay, this is blood basically. Blood is flowing in the blood vessel. इसके अंदर blood flow कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे है tissues present. What will happen is this बड़े बड़े प्रोटीन्स इस ब्लड वेसल्स में रह जाएंगे, और जो बाकी का फ्लूइड है वो इसके अंदर चला जाएगा. तो अभी ये टिश्यूज़ जो इस फ्लूइड से नहा रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड. नाउ दिस टिश्यू फ्लूइड इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड, ओके, एंड द टिश्यूज़. नाउ this fluid is taken back again to the blood vessel via lymph.
lymph is helping in what? Immune responses, phagocytosis वगैरह में, that way. It is having white blood cells, it doesn't have any RBCs. Okay. And fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi. Important है ये lacteals, helping in the absorption of fats. Lacteals is nothing but lymph channels or lymph nodes, lymphatic organ which is helping in the absorption of fats. That's all about it. So we have understood body fluids and circulation, introduction part, plasma, formed elements, blood groups, coagulation of blood, lymph. Next part is about the circulation pathways, human circulatory system, electrocardiogram, yeah, disorders. All this I will teach you in the second part. Okay, this first part was all about the blood, basically blood group, clotting. Okay, that's all about the human circulatory system, that is about the heart and the circulation, the disorders, that I will teach in the next part. हाँ, काफ़ी NCERT रीडिंग हमने इसमें कर दी, एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट. लाइन बाय लाइन करना बहुत ज़रूरी है. नोट्स एंड ऑल तो कर लोगे, बट NCERT रीड करना इज़ ऑल्सो वेरी बिग टास्क एक्चुअली. ओके देन, बाय बाय.